Mehdigarh, Rohtak, the constituency which is being fought, and it is Bhupinder Singh Hooda of the Congress, the former chief minister, who also has a constituency here. What's the ground situation? How many people, what percentage of voter turnout has been witnessed in Rohtak till now? Well, Megha, we are in last 30 minutes of the election phase in Haryana right now, and if we talk about the voting percentage, then till 4 p.m. it's been observed that 54.3% have been observed in the Rohtak district. And if we talk about Rohtak district, Megha, then in this Rohtak, 4 constituencies are there. One is the Rohtak seat, then Kiloi seat, from where former Chief Minister Bhupinder Singh Hooda is fighting the elections, and apart from that, Mehem and Kalanaur are also these 2 seats. We are at the polling booth right now, and you can see that still people are coming out of the polling booth to cast their votes. And if we talk about Rohtak, then the whole day there was an excitement in the minds of the people also to cast their votes, because these are very interesting elections. And if we talk about Rohtak, then it's also a very important seat and hot seat. Ma'am, आपने अपना वोट कास्ट किया? Yes. क्या मुद्दे थे दिमाग में? क्या बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा यहाँ रोहतक में मुद्दे हैं? Yes, the main thing is unemployment of the youth. This is the main issue. This is the main issue. सर, आपको क्या लगता है क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार रोहतक में? मैम, रोहतक में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैम ने बताया बेरोजगारी है, लेकिन पानी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि चीज़ें जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें शायद ये सरकार नहीं दे पाई। So these are the voices of people, Megha. People are saying that the thoughts they were having about the government, those were not fulfilled. Just several more people are joining us. We'll talk to them also. Sir, आपने अपना वोट कास्ट किया? Yes. इस बार क्या बड़े मुद्दे लग रहे हैं रोहतक में है? रोहतक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे बताइए कि किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट दिया है? बेरोजगारी, महंगाई, सड़कें, पानी, ये बड़े मुद्दे रहे हैं? एक तो भ्रष्टाचारी क्रिमिनल केसेस इतने बढ़ गए हैं रोहतक में, और सड़कों का तो बुरा ही हाल है, और एक जो फैमिली आईडी, इससे लोग इतने परेशान हैं, तो सबने मन बना लिया था कि इस बार बीजेपी को भगाना है रोहतक से। मन बना लिया था। अगले आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे या क्या एक अपील करेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए आप सरकार चुनने वाले हैं? अब आने वाली सरकार से यही अपील करें मैम, हमारे शहर की तरफ अच्छे से ध्यान करें। हमारे पीने के पानी, जैसे कि अब 2 बारिश की बूंदें होती है, हमारे यहाँ गलियाँ भर जाती है, सड़क बिल्कुल बेहाल हो जाता है, जाम लग जाता है चारों तरफ। तो यही करेंगे भाई, प्रशासन को अपने भाई स्ट्रिक्ट करके अपने शहर को थोड़ा साफ़ सुथरा हिसाब से करें, पीने के पानी में की हमारी मदद करें। अभी पिछले इसमें कई दिनों से देखा आपने भाई, शहर में पीने का पानी की बहुत समस्या चल रही थी। 2 बारिश की बूंदें होते ही पीने के पानी, जैसे सीवर के उसमें पानी आता है, वैसी स्मेल हमारे पीने के पानी में आने लग जाती है। So the quality of water is also a major issue right now in रोहतक district. सर, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार रोहतक के जो आपके दिमाग में थे वोट कास्ट करने से पहले? Look, see, everything is on a back foot. The previous government has not done a single thing. Everybody's against them. Like even issues like students, they're not getting their papers through. They aren't being called for the interviews. Do you think Agniveer, the restless protest, the Kisan Andolan, are these big issues right now? They're major issues. They're major issues, and none of them have ever addressed it. So it's basically people are fed up of the BJP and looking forward for Congress to come. Looking forward to change. सर, आप क्या कहेंगे, अगली आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे रोहतक के विकास को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जिससे आपको दिक्कतें हो रही हैं? आने वाली जो सरकार है उससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और सिर्फ रोहतक के नहीं, पूरे हरियाणा का विकास होता हमें दिख रहा है। जो मुद्दे जो हुड्डा साहब लेके चल रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है हमारे पूरे हरियाणा में कि अपराध इतना बढ़ चुका है कि मतलब अपनी चरम सीमा पे है, और दूसरा एक शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। 5000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। उसके बाद अगर हम जाएँ तो नशा भी एक बहुत मेजर इशू है, और हुड्डा साहब इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, और देखते हैं। ये आप कयास लगा रहे हैं। सर, आप क्या बोलेंगे, क्या मुद्दे हैं और आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? पिछले 10 साल से पीने वास्ते पानी नहीं है, जो साफ पानी चाहिए, मूलभूत सुविधा हमारी 10 साल से सीवर का पानी पी रहे हैं।
हाथ जोड़ लो, सीएम विंडो पर एप्लीकेशन ला लो, पानी नहीं है पहला। दूसरा ये है, बच्चे बेरोजगार हटा दिए, सारे टेंडर ये कंपनी को दे दिए, तुम उनके जमादार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। अरे बच्चा पढ़ रहा है, अब गरीब बच्चा कहाँ पढ़ेगा, स्कूल बंद कर दिए, तो उसको फैसिलिटी दो, कॉमन फैसिलिटी तो दे दोगे, पानी सीवर तो बना दो हमारे। So these are the demands of the people of Rohtak right now. They are asking for the basic facilities, and they are saying that the quality of water is a big issue. Sewerage is also a big issue. Yes, Megha. Okay, all right, Mandy, stay on with me. A number of issues that at this point of time have been spoken by the voters. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.